سب سے پہلے تو آپ تمام ساتھی حضرات کو سلام۔ معزز ساتھی حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کوئٹہ یونیورسٹی کی جانب سے امتحانات ملتوی کرنے اور یونیورسٹی میں تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ مورخہ 2 جولائی بدھ چند طلبہ کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس کو پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پجار، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ذمہ داران کی موجودگی میں میل مرکے کے ذریعے حل کیا گیا، لیکن پشتون بلوچ روایات کو پیروں تلے رونتے ہوئے چند شرپسند عناصر نے پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھیوں پر حملہ کیا، جس میں پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے 5 ساتھیوں کو انتہائی بے دردی سے زخمی کیا گیا، جن میں ضیاء خان جو ہمارا یونٹ کا سیکریٹری ہے وہاں پر ذمہ دار ہے، ساربان خان، رؤوف خان، معاذ خان، ان کو شدید زخمی کیا گیا۔ 5 نیتے طلبہ کو 30 سے 40 افراد ڈنڈوں، خنجروں، سریوں سے مارتے رہے، جنہیں بعد میں سول اسپتال کوئٹہ کے ٹراما سینٹر کیئر یونٹ میں داخل کیا گیا۔ پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یونیورسٹی کے اندر مسلح لاٹھی چتوں اور گروپوں کے داخل ہونے کو مکمل سیکورٹی لیبس یا سوچی سمجھی سازش سمجھتی ہے، اور معصوم نیتے طلبات کو زخم اور زخمی کرنے کے بعد آسانی سے فرار ہونے میں کامیابی کا سہرا بھی یونیورسٹی انتظامیہ اور یونیورسٹی سیکورٹی کو دیتی ہے۔ اس واقعے کا ہونا اور پلک جھپکنے میں ہاسٹل کا بند ہونا اور ساتھ ہی امتحانات کا کینسل کروا کر کے تعطیل کا اعلان کرنا، یونیورسٹی کی انتظامیہ پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ان تمام منفی عربوں کے باوجود پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے وفد نے کل یونیورسٹی کے رجسٹرار، انتظامیہ اور اساتذہ سے ملاقاتیں کی اور انہیں یقین دلایا کہ پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول کو قطعاً خراب ہونے نہیں دے گی، لہذا معمول کے مطابق ہاسٹل کو پوری طور پر کھول دیا جائے طلبہ کے لیے، امتحانات کو اپنے شیڈول کے مطابق لیے جائے، یونیورسٹی کو واپس کھول دیا جائے۔ بدقسمتی سے کل یونیورسٹی کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس سے طلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی پہلے ہی سے بحرانوں کا شکار ہے۔ معزز اساتذہ کی تنخواہیں مہینوں تک بند رہتی ہے، کبھی ان کی الاؤنسز کاٹ دیے جاتے ہیں، کبھی کوئی اور ناانصافی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح یونیورسٹی میں طلبہ کو مختلف پروگرامز کی مد میں ملنے والے اسکالرشپس کی مد آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی پچھلے 5 سالوں میں غالباً فیسوں میں 300% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ تعلیمی بہتری دیکھنے کو مل رہی، اس صورتحال میں یونیورسٹی کا بالکل بند ہونا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، کیونکہ ایکیڈمک سیشن پہلے سے ہی لیٹ ہو چکا ہے۔
और पिछले कुछ दिनों से ये खबरें सुनने को मिल रही है, यूनिवर्सिटी में पश्तो डिपार्टमेंट, बलूची डिपार्टमेंट, बरावी डिपार्टमेंट, इनको खत्म करने की एक साजिश हो रही है और इन्हें एक डिपार्टमेंट में जम करने की एक नाकाम कोशिश हो रही है। ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। मादरी जबानों के कौमों की तरक्की में किरदार को यूरोप, अमेरिका और तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक तस्लीम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ मादरी जबानों का एहतराम नहीं किया जाता, इनके फरोग के लिए इक़दामात नहीं उठाए जाते। रियासती हुकूमती सतह पर कौमों की शनाख्त, जबान, सकाफत से इनकार किया जा रहा है। पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको माजी के हुकूमती इक़दामात का सिलसिला समझती है। यूनिवर्सिटी के पश्तो डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी जो कि रिसर्च बेस पे होती है, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है, यूनिवर्सिटी के पश्तो डिपार्टमेंट में अब भी 10 PhD स्कॉलर, जो रिसेंटली सेशन स्टार्ट है इसमें 10 PhD स्कॉलर और 35 MPhil स्कॉलर जो है ना वो पढ़ रहे हैं, जो किसी और डिपार्टमेंट में इसकी मिसाल नहीं मिल रही है। लिहाजा यूनिवर्सिटी इन डिपार्टमेंट को जम करने से गुरेज करे। बदीगर सूरत पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ अपना सख्त से सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करेगी। इस तरह जरी कॉलेज को पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी के दौर हुकूमत में यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान किया गया। इस सिलसिले के लिए नई इमारतें तामीर की गई। इन इमारतों को रेंट आउट करने की साजिश की जा रही है। पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जरी कॉलेज की इमारतों को किसी सूरत रेंट आउट होने नहीं देगी। नई तामीर शुदा इमारतों को रेंट आउट करने दरहकीकत कॉलेज को यूनिवर्सिटी को बंद करने की एक साजिश समझती है। सरकारी अवामी बजट से तामीर करदा इमारतों को न्यूटेक को देना अवामी अमला को चोरी करने और बेचने के मुतरादिफ है, जिसे पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पश्तून कौमी तहरीक के दाएं बाजू का किरदार दायूं से अदा कर रही है। पश्तून कौमी तहरीक के सफ त्यावल का किरदार अदा कर रही है। पश्तूनख्वा वतन में इल्म शऊर के दिए जला रहे हैं। पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा तारीखी किरदार अदा किया है। पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तालीमी इदारों के खिलाफ जो भी साजिश माजी में हुए, पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सबका खंदा पेशानी से मुकाबला किया है और आइंदा भी किसी मखजूम मकसद को कामयाब होने नहीं देगी। पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा बाकी तलबा तंजीमों के साथ तालीमी बेहतरी के लिए, तालीमी माहौल के लिए, तालीमी मैदान में अमन के लिए हमेशा बाकी तलबा तंजीमों के साथ एक अच्छे रवाबित से पेश आई है और इंशाल्लाह आगे भी पेश आते रहेंगे। और सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, तालीमी बेहतरी के लिए और 21वीं सदी के तालीम के लिए, मेरिट के लिए और नकल के खात्मे के लिए बाकी तलबा तंजीमों के साथ हमेशा शाना बशाना जो है जदोजहद करती रहेगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी में पिछले दौर कौम परस्तों की जो हुकूमत थी, डॉक्टर मालिक साहब वजीर आला थे। यूनिवर्सिटी में अजीज यूसुफ मक्सी और खान शहीद रिसर्च सेंटर कायम किए गए, जो बदकिस्मती से अब बंद पड़े हुए हैं, उनमें कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। उन डिपार्टमेंट वो कंडरात में बदल चुके हैं, लिहाजा और एनजीओज को किराए पे दिए हुए हैं, जिनमें मुख्तलिफ सेमिनार्स हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी उनसे रेंट ले रही है। और साथ ही साथ में हमारी तालीम के साथ एक मजाक बनाया हुआ है। हमारी तालीम जो है ना दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रही है। ये एक दानिस्ताना तौर पर साजिश हो रही है। कल ही आपको मालूम है मैट्रिक का रिजल्ट आज आया है। कल मैट्रिक आज रिजल्ट आया है। कल बोर्ड के चेयरमैन ने एक लेटर जारी किया है कि मेरे ऊपर प्रेशर्स है, यहां पर नंबर्स पैसों के उस बिक रहे हैं, यहां पर पोजीशंस पैसों के उस बिक रहे हैं, मुझ पर प्रेशर्स है। उन्होंने ये लेटर
जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड है उनको लिखा है। आज आपने देख लिया कि कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जो बोर्ड का है, जो एक बहुत ही जिम्मेवार पोस्ट है, आज सुबह रिजल्ट आने से पहले उसकी ट्रांसफर कर दी गई है। हम ये समझते हैं या तो अगर इस हुकूमत से हम मुतालिबा करते हैं, इदारों से हम मुतालिबा करते हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक जिम्मेवार पोस्ट है जो तमाम रिजल्ट को चेकआउट करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, उनकी शफाफियत देखते हैं। जब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की इस तरह का लेटर सामने आना एक सवालिया निशान है हमारी तालीम पर, हमारी बोर्ड पर, हमारी तालीमी निज़ाम पर। और उसके बाद अगर ये लेटर सच है तो हम हुकूमत से पूरी मुतालिबा करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये सच है, वो कौन लोग हैं जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ब्लैकमेल कर रहे थे रिजल्ट बनाने में और उनसे अपनी मर्जी के नंबर लगवाने में, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ भी शदीद एहतजाज करेगी, तहरीक चलाएगी। और अगर ये लेटर झूठ है, झूठ पर मबनी है, तो पिछले 3 सालों से जो ये कंट्रोलर साहिबा बैठी हुई, तो फिर जाहिर सी बात है उन 3 सालों में भी फिर ये मार्क्स पैसों के औस बिके है, उनमें भी मेरिट की पामाली हुई है, उनमें भी नियर डियर हुई है। तो हम ये आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस